So just close your eyes. Focus on what we have come here for. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath, saying thank you. And when you're breathing out, say one more time, thank you. Relax your shoulders, relax your back, sit straight. Take one more deep breath and thank you. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for bringing us together on this platform so that we create magics in our life and have that belief that we are the creators of our life. Thank you, universe, for giving us the strength and the time to practice these practices of gratitude. Thank you for all the abundance and the blessings you're showering on us. And I know you're going to give to me whatever I require. I have 100% belief on you that whatever I ask will be given to me. If I ask with good heart, with lots of gratitude and my practices. So thank you, universe, for making me the channel of blessing to enlighten other people's life. Thank you. Thank you. Thank you. Open your eyes. We can on the cameras. Please keep your cameras on. So yesterday we had this chapter where we learned how to write our dreams. So today I will just be briefing in 5 minutes that what we learned yesterday. I'm not going to take the whole chapter because I'm going to make you write your dream and scripting and how we are going to go about it. The first thing is that yesterday we learned that we have to be thankful for our dreams before we get it, right? एंड हमको ये भी देखना है कि हमारी जो ड्रीम्स है जब हम उनको पहले से ग्रैटिट्यूड का पावर देना शुरू कर देते हैं, पहले से उसको थैंक यू बोलते हैं, इट हैज टू मैनिफेस्ट. नाउ दिस बुक इज हेल्पिंग यू थ्रू, or this chapter if I say is helping you through to understand through gratitude हम हमारी ड्रीम्स तक कैसे कैसे पहुंचे. बट दिस इज अ साइंटिफिक मेथड इफ यू अंडरस्टैंड दिस. इट्स ऑल एवरीथिंग ट्रेनिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड. तो यहाँ पे उन्होंने कल बताया था दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, विच मीन्स जो चीज आपने आपके माइंड के अंदर फॉर्म की हुई है वही आपको सामने दिखेगी, राइट? एंड whatever you want, she says, so how you feel is how you would feel when you would have wanted. So when you have, if you want to attract your desire, आपको पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए, right? How are you going to say, how are you going to feel? You have to feel beforehand. You have already got there. Now why you need to feel that, I'll explain it to you in 2 minutes. Once, let me finish. So here she said that whoever has gratitude now will be given more in the future. So अगर आपने past के शुक्र किए, present के शुक्र लिखे and किए, तो you are going to have abundance. Gratitude is something you must have before you can receive and not something that you simply do after something good has happened. आप रुको मत कि जब मेरा वेट 65 केजेस का हो जाएगा तब मैं वॉकिंग करना चालू करूंगी.
जब मेरा स्किन इतना ग्लो होना शुरू हो जाएगा, तब मैं अपने आप को और अच्छा ब्यूटीफुल मानने लगूंगी। राइट? आपको अभी से अपने आप को ब्यूटीफुल मानना है। अभी से आपको जो चीज चाहिए वो ऑलरेडी, सी, यस्टरडे ऑल्सो आई सेड, आपको जो चाहिए वो ब्रह्मांड में ऑलरेडी अवेलेबल है। इन द इन इन यूनिवर्स। हमको वो रियलिटी में नहीं दिख रहा है, इट इज इन द अदर यान, यानी जो हमको अनदेखा है, यानी हमको जो दिखता है वो हमारी रियलिटी है। कैसी 3D रियलिटी है? कि जो हम सोचते हैं। आपको पता है कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक डायरेक्टर हो, आप एक एक्टर हो अपनी लाइफ के। अब बताओ कैसे, कौन बोलेगा? आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली। कौन बोलेगा? हम किस तरीके से, मैंने आपको आज क्वेश्चन पूछा है कि आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, क्रिएटर हो, एक्टर भी हो, वो कैसे? मैम मैं वो सब करूंगी जो मुझे खुशी मिलती है, और सबके लिए मैं ग्रैटिट्यूड भी करूंगी मैम। नहीं करूंगी का नहीं, करूंगी, करती हूँ मैं। करूंगी की बात नहीं कर रही हूं मैं। करती हूँ मैम। जब से सेशंस ज्वाइन किया है करने लगी हूँ मैं। नहीं, आई वॉज लाइक, आप कैसे, आपके, हाउ आर यू अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर ऑफ योर लाइफ? मैम आप रोज आपसे क्या मिलने करते के। हो? आप रोज जो सोचते हो ना, राइट? आज मैं खाना बनाऊंगी, तो आप खाना बनाते हो। राइट? आज मैं फेस पैक लगा के बैठूंगी, तो आप फेस पैक लगाते हो। आज मैं बाहर घूमने जाऊंगी, तो आप घूमने जाते हो। तो यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ एवरी डे। आप आपकी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हो। आज मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए है, मंजू मैम, मैंने स्क्रिप्ट में लिख दिया। मेरी स्क्रिप्ट में आज मैंने लिख दिया मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। मैंने माइंड को ये बोल दिया कि मेरे पास लैक है। राइट? आपको सामने क्या मिलेगा? यू हैव सीन अ मिरर, वी डू द मिरर वर्क इन द मॉर्निंग, राइट? सपना मैम, अभी हम जब मिरर में देखते हैं तो हमको कौन दिखता है? मैम पहले कोई और दिखता था, अभी मुझे बहुत हैप्पी मैं दिख रही हूँ। आई एम नॉट आस्किंग दैट। अभी अभी सपोज एवरीवन लीव अबाउट मिरर, मिरर वर्क। आप अगर मिरर में देखते हो, कोई भी मुझे आंसर करो। आप जब मिरर में देखते हो तो आपको कौन दिखता है? We see ये, ourselves only, no? यस, यस, यू सी योर सेल्फ एंड दैट इज योर रियलिटी। क्योंकि जो आपने अंदर क्रिएट किया है वो आपको आपके मिरर में दिख रहा है। तो अगर आप बोलोगे मेरा नाक मोटा है, तो आपको आपका नाक मोटा ही दिखेगा। अगर आप बोलोगे मेरी स्किन लूज है, तो आपकी स्किन आपको लूज ही दिखेगी। बिकॉज यू हैव पुट इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो हमको बार बार वरी, एंगर, हाइपर एंशियस की तरफ लेके जाता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है ना, वो बाकी के सब काम आराम से करता रहता है। जैसे अपनी अपना हार्ट चलता है, लंग्स चलते हैं, राइट? हमारे बाल बढ़ते रहते हैं व्हेन यू आर स्लीपिंग। राइट? जब आप सोते हो तब भी आपके बाल बढ़ते रहते हैं। कभी आपने सोचा? आपकी स्किन पर्सपायर करती है, आपको ये साइंटिफिक रिसर्च पता है कि आपकी स्किन सबसे ज्यादा पर्सपायर तब करती है जब आप सोते हो। और हमको ऐसे लगता है कि ये पसीना दिन में सुबह में भागने से ही आता है। बट द सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग ना, वो तो आपकी पूरी पूरी चीजें कर रहा है। तो अगर आप उसको बोलोगे कि मैं मोटी हूं, तो वो आपको मोटा ही दिखाएगा। क्योंकि वो इतना अच्छा कमांड सुनता है ना, कि वो हेवन अर्थ सबको एक कर देगा आपको जो चीज चाहिए वो प्रेजेंट करने के लिए। सो टुडे अंडरस्टैंड व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको, आप जो भी, यानी पहले तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आपके जो थॉट्स, बिलीव्स, ओपिनियन, थियोरीज, जो भी आप माइंड करते हो आपके अंदर लाते हो। अगर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव है कि बिल्ली क्रॉस करती है तो वो मेरा मेरा कुछ तो कुछ खराब होगा, वो आपने बिलीव बना लिया है। तो आप जितनी बार बिल्ली को रास्ते में से जाते देखोगे ना, आपके माइंड में पहले से आ जाएगा कि आज मेरा कुछ खराब होगा। हम बोलते हैं ना, बिल्ली ने कभी क्रॉस कर दिया तो आज कुछ ना कुछ उल्टा होगा, क्योंकि आपने वो बिलीव बना लिया है। बट अगर आप तभी उस अपने माइंड को बोल दो कुछ नहीं होता है अगर बिल्ली ने क्रॉस भी किया तो, इट्स ओके, एंड उसका पॉजिटिव बोल दो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो आप देखो यू आर रिमूविंग दैट बिलीफ। तो आज आपके सामने जो भी आपकी चीजें हो रही है, वेदर इट इज lack in health, lack in money, lack in relationship, lack in career, or whatever it is, जो भी आप आज देख रहे हो ना, it is all because what you have, जो तुमने खाना दिया ना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को, वो whatever you have given to the subconscious mind, it is presenting it to you, लो थाली में परोस रहा है वो। तो आपको रियलिटी में फिर वही दिख रहा है कि मेरा वजन बड़ा है, राइट, मैं अच्छी नहीं हूं, मेरे पास लैक ऑफ मनी है, हाउ आई एम गोइंग टू डू, हाउ आई एम गोइंग टू डू, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरा वजन कैसे कम कर पाऊंगी। अगर आपने सिंपल भी ऐसे बोल दिया ना आपके माइंड को, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता मैं कैसे कर पाऊंगा, खत्म, वो आपको एक्शन ही नहीं लेने देगा। बट आप जितना बोलोगे कि आई एम स्लिम, आई एम फिट, आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम ऑफ परफेक्ट वेट, तो सब धीरे धीरे क्या होगा, जो भी आपने लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर रखी हुई है ना, वो बोलते हैं ना, उसको क्या वर्ड यूज करेंगे कि वो स्मैश होके पूरा उसके अंदर एक नया बिलीफ बनना शुरू होता है। दिस इज ऑल रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन, रिमेंबर, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। एंड व्हेन यू हैव दैट, तो आपने जो भी ब्रेन का थॉट भेजा वो आपके सोलर प्लेक्स में जाता है, दैट इज योर ब्रेन ऑफ आपके माइंड का, एंड वो फ्लैश में आपको प्रेजेंट कर देता है। इट मेक्स इट रियल एंड इट प्रेजेंट्स इट टू यू। तो आपको ये देखना है कि आपने कौन से थॉट्स, और सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है ना वो ऐसा रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड को, वो आपके साथ आर्ग्यू भी नहीं करता है, वो कॉन्शियस माइंड के साथ भी आर्ग्यू नहीं करता है। तुमने उसको बोला मुझे मुझे अगर आपने कोई कोई गलत चीज भी बोल दी उसको, राइट, वो आपको आर्ग्यू नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है तुमको ये चाहिए, मैं आपको ये देता हूं। तो आपने अगर नेगेटिव थॉट डाला है तो वो आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा कि आपने नेगेटिव थॉट डाला है, वो बोलेगा ठीक है तुमको ये चाहिए, टेक माई, योर विश इज माई कमांड, और वो आपको प्रेजेंट कर देगा जो आपको चाहिए। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कैसे रीवायर कर सकते हैं। बिकॉज आप जो भी आज हो ना, आज आपके सामने अगर लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ हेल्थ है, और बिकॉज किधर ना किधर आपने अपने माइंड में जो भी बोला है ना अपने माइंड को, वो सबकॉन्शियस माइंड में इंग्रेन्ड हो गया है। ओके, वन इट गेट्स एनग्रेव्ड, वो इम्प्रेशन बन जाता है, जैसे हम सैंड में जाते हैं तो कैसे इम्प्रेशन बन जाता है ना, राइट, तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, और फिर वो आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है जो आपने बोला है। पर अगर आप बोलोगे नहीं मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे सब ड्रीम पूरे हो रहे, आई एम इनफ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे और आप बोलोगे आई एम इनफ, कीप ऑन सेइंग, तो क्या होता है, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी को हमको चेंज करना पड़ता है ना, 93.5 FM, 101, राइट, तो हम तो चेंज करते हैं तभी तो, ये जो फ्रीक्वेंसीज रेडियोज में होती है उसी तरह आपके पास जो आपको चाहिए, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स। बट हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड से वर्क करता है, तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देते अच्छी चीज को। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें डालना शुरू करते हो और बोलते हो कि नहीं यार मैं तो कर लूंगी, पैसा तो मेरा दोस्त है, पैसा तो मेरे पास रोज आता है,
कभी भी नेगेटिव थॉट आया, अरे कल पैसा नहीं है, इसका लोन पे करना, मैं कैसे करूंगी, आप सिर्फ ऐसे बोलो कि मैं कर लूंगी, पैसा तो आ जाएगा। टेल योर सबकॉन्शियस माइंड दैट, और आप देखोगे कि आपका वो ड्रीम पूरा होता है क्या नहीं होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि how subconscious mind works and how are you going to do now. Yesterday we had discussed this, what do you most want right now, सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए अभी। आज आपने आपका ड्रीम लिखा, राइट। So if you have written your dream, just now we are going to start writing a script for it. आज आप आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब बनने वाले हो। एक्टर भी आप ही हो आपकी लाइफ के, राइट। आप अच्छी एक्टिंग करोगे तो आपको सब चीजें अच्छी मिलेगी। आप बुरी एक्टिंग करोगे तो पूरा नेगेटिव ऑडियंस मिलेगा सामने से। आ रहा है तो कुछ दिमाग में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप खुद आपकी लाइफ को जो नेगेटिव थॉट्स हम बोलते हैं ना, जो बिलीव्स होते हैं, या बचपन से हमको बोला गया रहता है, अरे नजर लग जाती है, अरे ये हो जाता है, अरे ऐसा मत करो, अरे काला कपड़ा मत पहनो, अरे ये मत करो, तो वो हमने बिलीव बना लिया रहता है, राइट। उसको साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखो और अपनी बिलीफ को पॉजिटिव स्टेटमेंट से भरो, दैट इज अफर्मेशन। एंड व्हेन दैट यू स्टार्ट डूइंग इट, यू आर एबल टू सी योर ड्रीम कमिंग ट्रू। देन आपको वो, जब आपके लिमिटिंग बिलीव्स हट जाते हैं ना, तो आपको फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है अच्छा इसको तो ये चाहिए, इसको तो पैसा चाहिए, इसको तो घर चाहिए, इसको देना है, एंड देन ही स्टार्ट्स गिविंग यू दैट हेल्प टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। तब जाके हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, राइट। आप एक्शन नहीं लोगे, मैं सिर्फ लिख के बैठ जाऊंगी तो थोड़ी होगा। आपको रोज उसको चार्ज करना है, आप रोज उसको थैंक यू बोलोगे, पॉजिटिव में बोलोगे। अब आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, टुडे हम वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ वन ड्रीम, राइट। जैसे धारा जी का, धारा जी आपका एग्जांपल लूं मैं लैपटॉप का। धारा जी है यस क्या? मैम। यस मैम। तो अगर जैसे अभी एग्जाम्पल लेंगे धारा जी का, धारा जी को लैपटॉप चाहिए तो उन्होंने लिखा होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय न्यू लैपटॉप ऑन विच आई एम वर्किंग एवरी डे, राइट। पहला सेंटेंस आपका ये ड्रीम लिखा आपने, 3 बार थैंक यू लिखा, अपने ड्रीम लिखा, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, राइटिंग, राइट। अब उसको सेकंड सेकंड स्टेप पे आना है हमको। सेकंड स्टेप क्या होगा अपना, कौन बोलेगा, कल मैंने बोला भी था, कौन बोलेगा सेकंड स्टेप क्या था, बोलो बोलो। Description about the laptop. Yes, first you're going to write, then you're going to speak. Write down the steps. पहले आप आपका ड्रीम लिखोगे, द फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग ऑफ योर ड्रीम। सेकेंड इज you're going to speak about your what you say your dream। अब आपको स्पीक कैसे करना है, जब आप स्पीक कर रहे हो, when you're writing you have to write it in brief, ओके। एवरीडे नहीं लिखना है। आज जब आपका ड्रीम मेन बना रहे हो, आप उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हो। आज ये पूरा ध्यान से समझो, द फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग योर ड्रीम। उसके बाद अभी उसका लैपटॉप के बारे में आप उसको डिस्क्राइब करोगे, यू नो माई माई लैपटॉप, द लैपटॉप विच आई हैव गॉट इज ऑफ डेल कंपनी, लेनोवा जो भी है, एंड इट इज वर्किंग सो वेल यार, उसका साउंड सिस्टम कितना अच्छा है, अच्छा ये भी फैसिलिटी उसमें है, मैं उसमें स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। Now I have started making my videos and I'm taking my Zoom sessions on it। कितना मजा आ रहा है, सब मेरे Zoom सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड यू हैव टू कीप ऑन एडिंग, जो भी आपके मन में आता है कि आप, जब आपका लैपटॉप आपके पास आ गया है, आप क्या क्या कर रहे हो, राइट। अगर मैंने कार ले ली है तो कार को मैं क्या कर रही हूँ, राइट। तो आप कार का कलर, उसका कलर कितना अच्छा है, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, कितना एवरेज देती है कार, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट कितनी अच्छी है, उसका यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। वाओ, उसका सीटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा है। तो जैसे लैपटॉप की हम बात करें तो आप बोलोगे वाओ यार कितने अच्छे फीचर्स हैं मेरे लैपटॉप में, पूरा एडवांस है, Windows 10 एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। अरे थोड़ा सा हार्ड है पर मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट Windows 10, एंड आई एम एबल टू सी अ बिग स्क्रीन ऑन माई लैप दिस थिंग। और फिर जो भी आप लैपटॉप से करने वाले हो, आप सेशन लेने वाले हो, आप वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हो,
वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, आई कैन कैरी माई लैपटॉप एवरीवेयर, मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जहां जाऊं मैं वहां जाके सेशन ले सकती हूँ, right? So that way you are going to speak about at least 5 to 10 sentences, बड़ा बड़ा चढ़ा के जो भी आपका ड्रीम है। अगर आपकी हेल्थ का ड्रीम है तो आप लिखोगे कि वट एवर यू वॉन्ट, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग, माई रेड ब्लड सेल्स आर इंक्रीजिंग, every cell of my body is filled with energy and I have started eating energy food, मेरे टेस्ट इतने अच्छे क्लियर आए हैं that now I am healthy and I'm able to walk, नाउ दैट आई एम एबल टू वर्क, मेरा हार्ट रेट इतना अच्छा हो गया है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, आपको उस यानी आपने जो ड्रीम लिखा है उसके बारे में आपको एटलीस्ट 8 सेंटेंसेस 10, कि आप उसको 5 मिनट्स तक विजुअलाइज कर सको बोल के वही चीजें फिर। तो फर्स्ट स्टेप होगा राइटिंग ऑफ योर ड्रीम, द फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखोगे। स्क्रिप्ट का मतलब है आपने अभी जो उसको डिस्क्राइब करना है। मैंने मेरा मुझे मुझे घर चाहिए तो मैंने लिखा थैंक यू फॉर द 3 BHK, ओके 3 BHK 1000 स्क्वायर फुट और 1500 स्क्वायर फुट हाउस। आपको क्लैरिटी चाहिए पहले तो, आपको क्या चाहिए। देन आई विल राइट वाओ, अब थैंक यू, आई आई हैव शिफ्टेड टू माई न्यू हाउस ऑफ 3 BHK ऑफ 1500 स्क्वायर फुट। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपको वो चीज मिल गई है। इफ यू वॉन्ट मनी, आपको मनी के लिए ऐसा लिखना है कि थैंक यू, आई हैव रिसीव्ड वट एवर अमाउंट, अभी आपको अगर डेप्थ है उसका पे करना है, आप एटलीस्ट उसका स्टार्ट विथ अ स्मॉलर अमाउंट। अगर आपका डेप्थ या लोन बहुत बड़ा है, ओके, देन यू आर गोइंग टू यू अगर आपका 5 लाख का लोन है तो आप एक साथ में थोड़ी 5 लाख निकाल पाओगे, राइट? तो यू विल राइट अ स्मॉलर अमाउंट कि मैं इसकी पहली अमाउंट दे रही हूं, मे बी 1 लाख, 1.5 लाख, ओके। सो थैंक यू फॉर द 1.5 लाख विच आई हैव रिसीव्ड, विच इज गोइंग इन repaying of my debt, okay? And then, और फॉर माई पेमेंट, डोंट यूज द वर्ड डेप्ट एंड लोन, वी यूजुअली ट्राई टू से कि मेरा पेमेंट गया, जिसको भी जाना था आप उनका नाम लिख सकते हो साथ में, इफ यू आर इन अ डेप्ट। नेक्स्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू राइट अबाउट लोन इज वाओ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, आज मेरा पहला किस्त चला गया, वाओ मेरा एक EMI चला गया, अभी इतना बैलेंस बाकी और ये भी निकल जाएगा मुझे पता है। एंड देन यू से कि अब ये बाकी के पैसे जो है मैं इनका ये पूरा नेक्स्ट महीने में मैं ये पूरा कंप्लीट कर रही हूँ और मेरे पास अभी अगले महीने में भी इसके पैसे आ जाएंगे और मैं एटलीस्ट 15,000 में और भर रही हूँ। इस तरीके से आपको आपका लोन का भी लिखना है अगर आपको डेप्थ है और या लोन है तो, ठीक है। So you have to imagine that you are already doing all the things and आपके पास पैसा ऑलरेडी आ गया है। एंड सोचो आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो कि आपका लोन चुकता हो गया है, आपने चुका दिया है। एंड इन नेक्स्ट 5 months so my loan is really complete and I'm so happy and relaxed. Now I'm having lots of savings and I'm going to use this savings for my travel, to buy any wardrobe in my house or fridge in my house, whatever, जो भी आपका ड्रीम है। जब आप ऐसे आपकी स्क्रिप्ट लिखते हो, यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड दैट वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड अभी आपको एक्शन, और ये रिपीट करना होता है बार बार, क्योंकि हमने, अब सोचो आप जो भी एज के हो और बचपन से जो हमको बिलीव्स बोली गई, पैसा खराब होता है, ज्यादा पैसा के लिए हाउ हाउ नहीं करना है, पैसे आते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीजें बोली रहती है हमको, तो वो हमारे बिलीव्स बन के रहते हैं। तो अगर इतने सालों की बिलीव है तो टाइम तो लगेगा ना आपको उसको रिवायर करने के लिए। तो उसके लिए हम कल बात कर रहे थे, रिपीट रिपीट रिपीट, इसके लिए बात कर रहे थे कि हमको रिपीट करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने ड्रीम लिखा और आपने उसकी स्क्रिप्ट लिख दी। सेकेंड थिंग, अभी आप इसको बोलोगे और सुनोगे, राइट? स्पीक, यानी इसको बार बार आप रीड करोगे, आपको रोज लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप उसको ट्राई करो। देखो आप जब 2-3 बार उसको रीड करोगे ना, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको बाय हार्ट हो जाएगा। फिर अपने आप भी आप खुद ऐड कर सकते हो अपने और सेंटेंसेस, जो भी आपको उस समय अच्छा फील हो रहा है। The second step would be that you're going to speak about your dream.
जैसे कल मैंने पूछा, किसी को पता नहीं था अपना ड्रीम क्या है, जैसे मुझे कोई पूछता है तो मैं पहले बोलती हूँ केबीसी, आई वॉन्ट टू बी ऑन द हॉट सीट। सबसे बड़ा ड्रीम मेरा वो है, राइट। नेक्स्ट, थर्ड वाला रहेगा कि आपको लिसन करना है, आपको ड्रीम को। आप लिसन कैसे करोगे? आपको आपका जो ये ड्रीम आपने अभी स्क्रिप्ट बनाया ना, आप फोन पे एक आता है ना वॉइस, वॉइस मैसेज हम भेजते हैं, राइट, उस पे रिकॉर्ड कर लो। व्हाट्सएप में जाओ, अपने अपने इसके ऊपर, चैट के ऊपर, और ये पूरा स्क्रिप्ट जैसे आपने लिखा है ना वैसे आप उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि आपने सब चीजें लिखी अच्छी कि मैं मेरे लैपटॉप से ये काम कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप में वीडियो बना रही हूँ, मेरा यूट्यूब इतना अच्छा चल रहा है, उसकी वजह से मैं मेरा यूट्यूब चला पा रही हूँ। तो आपने ये सब चीजें लिखने के बाद आपने अभी उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपने रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको बार बार सुनोगे। जब भी आप रात को सोने को जा रहे हो, दिन में आप फ्री हो, ओपन करो वो वॉइस रिकॉर्ड को, ताकि आप, और तो आप जब वो सुनोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो जाएगी। आप देखना, ये मुझे एक्सपीरियंस करके बताना कि जब आप सुनने जाते हो तो हम ऑटोमेटिकली अपनी आईज बंद कर देते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम गाने भी सुनते रहते हैं, आप देखोगे, आप अकेले में अगर बैठ के गाने सुन रहे हो ना तो आपका आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो उस थर्ड स्टेप वुड बी दैट यू आर गोइंग टू लिसन, आपको रिकॉर्ड करना है और उसको सुनना है। उसके बाद का फोर्थ स्टेप है विजन बोर्ड। कल हमने जो बात की थी और मैंने आपको बोला था टेक योर टाइम टिल संडे एंड बट यू हैव टू शो मी योर विजन बोर्ड, ओके। विजन बोर्ड, तो विजुअलाइज, अभी विजन बोर्ड क्यों बनाना है? हमको जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अभी, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज अभी तक आपने दिखाई, वो आपको रियलिटी में दिख रही थी आईने में। अब आपको जो चाहिए, राइट, आपको जो चाहिए आपके माइंड बोलेगा वो चीज, तो आपको वो चीज को विजुअलाइज करना है, राइट। तो आप जब विजुअलाइज कैसे करोगे कि पहले आप विजन बोर्ड में, आप विजन बोर्ड के ऊपर आपका पिक्चर लगाओ। एग्जाम्पल, मुझे लेनोवा का, यस, लेनोवा का लैपटॉप चाहिए, ओके। आई हैव रिटन थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव रिसीव्ड माई लेनोवा लैपटॉप, ओके। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, वो कैसे आएगा नहीं चिंता करनी। प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट, प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। हु हैज ज्वाइंड? प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट प्लीज। यस। तो आपको क्या करना है कि आपको विजन बोर्ड के ऊपर, आपको एक आपका लैप गूगल पे जाके लैपटॉप का पिक्चर निकालना है, ओके। एंड देन यू टेक योर एनी पिक्चर। नहीं है तो आपका कैमरे से आपका सेल्फी निकालो, आपकी गैलरी में जाएगा, फिर वहां से आप उसको कैनवा पे जाके आप उसको वो फोटो उठा के यहाँ पे आप डालो इसके साथ में। यू वर्किंग ऑन कैनवा। कैनवा एक ऐप है, आप अगर उसको डाउनलोड करो, बहुत इजी है ऐप ऑपरेट करने के लिए, फोन पे डाउनलोड करो। एंड उसके ऊपर बोलो पोस्टर डालना है, और उसके ऊपर पोस्टर का निकाल के आप उसके ऊपर अपना लैपटॉप का पिक्चर लगाओ। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर अपना फोटो लगाओ। एंड उसके नीचे टाइप कर दो या ऊपर लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और कुछ भी नहीं लिखा ना तो भी चलेगा। जस्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स। वो जो लैपटॉप आपको चाहिए, वो लैपटॉप या जो कार चाहिए या जिस टाइप का आपको घर चाहिए, वो उसका पिक्चर और आपका पिक्चर साथ में, राइट। अगर आपका घर है तो आप घर के लिए अलग अलग रूम्स के भी पिक्चर लगा सकते हो साथ में, कि आपके रूम में कैसा वाला रूम चाहिए आपको, ईस्ट वेस्ट फेसिंग वाला डायरेक्शन वाला रूम चाहिए, वो सब करो। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, वी आर कमिंग नाउ। विजन बोर्ड बन गया। विजन बोर्ड आपको, देखो, अगर आप कबर्ड में रख रहे हो, इतना ध्यान रखना कि आपको सिर्फ कबर्ड में रखना नहीं है, हाँ? अगर आपको कोई इश्यू है घर में कि आप किसी सामने नहीं लगा सकते, आपको रोज उसको चार्ज करना है, थैंक यू बोलना है, उसको देखना है। इसके लिए हम उसको विजन बोर्ड बोलते हैं, ताकि वो हमारी आईज के सामने रहे। बट इफ यू फील कि हाँ कोई आएगा तो आपको 4 सवाल पूछेगा, मुझे घर में नहीं लगाना है, कोई बोलेगा अरे पागल चाले कर रही है, देन व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि यू कैन मेक अ स्क्रैप बुक, और स्क्रैप बुक के अंदर आप लगा दो, और आपका या तो आप चार्ट पेपर के ऊपर बना दो आपका विजन बोर्ड,
अच्छा सा पिक्चर्स वगैरह चिपका के, आपका पिक्चर होना बहुत जरूरी है उसमें। अगर हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो, न्यू पार्टनर चाहते हो, तो किस टाइप का पार्टनर चाहते हो, राइट? तो आप उस तरीके से पिक्चर लगा के विजन बोर्ड बना दो और आपके पास रखो, या तो आपकी जर्नल में रख लो। मैं यूजुअली मेरी जर्नल में रखती हूँ, ताकि वेन एवर आई ओपन इन द मॉर्निंग आई हैव अ लुक एट इट, एंड आई जस्ट फील कि मेरी ड्रीम पूरी हो गई। तो विजुअलाइज, विजन देखना है उसको, कि आपकी ड्रीम ऑलरेडी, वो जो भी डिजायर आपने लिखी वो पूरी हो गई। फिफ्थ वन इज, लास्ट स्टेप इज, देखो 5 स्टेप्स मैंने डिस्कस कर लिए, द लास्ट स्टेप इज विजुअलाइज। अब यहां पे आपका जो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड प्ले करता है हाउ टू विजुअलाइज, राइट? जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो आपने स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट लिखी फर्स्ट इसमें स्टेप में, वो स्क्रिप्ट को आपको बोलते जाना है या सुनते जाना है वापस से, और उसको विजुअलाइज करते जाना है। अरे वाह, मेरा तो लोन कंप्लीट हो गया। अरे मुझे जो भी बंदे को देना था वो चला गया है, एंड वो बंदा भी कितना खुश हुआ है, मैंने उसको एकदम खुशी से पैसे दिए हैं, एंड उसको ब्लेसिंग करके वापस दिए। उसने जो मुझे लोन दिया था उसकी वजह से मुझे कितने मेरे काम अच्छे हो गए। स्पीक ऑल दिस दैट टाइम व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग योर ड्रीम। मेरा लैपटॉप आ गया है, कितना मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर, मेरा वीडियोस कितने अच्छे, वाव कितना मजा आ रहा है यार, मैं रोज नए नए वीडियोस बना के डाल रही हूँ, मैं जूम सेशंस ले रही हूँ, और मैं, ये तो छोड़ो, मैं तो कितनी सारी नई चीजें सीख ली मैंने मेरे लैपटॉप पे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक, विजुअलाइज योर ड्रीम एटलीस्ट फॉर 5 to 8 minutes। इनिशियली तकलीफ होगी 8 मिनट्स, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 5 मिनट्स तक आपको बार बार वो चीजें बोलते रहना कि वाओ, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, आई एम लुकिंग सो फिट एंड फाइन, आई एम ग्लोइंग, and my cells are radiating with energy, with new blood, with everything new। ऐसे जब आप पॉजिटिवली अपने आप को विजुअलाइज करोगे कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी होगी, कि मैं इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, कि सब मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इफ योर ड्रीम इज फॉर हेल्थ, और यू आर रिड्यूसिंग योर वेट, वट एवर इट इज, तो आपको इस तरीके से विजुअलाइज करना, ये 5 steps। एंड वेन यू डू योर ड्रीम एवरी डे दिस वे, then you are training your subconscious mind। तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा, अच्छा अच्छा, वो जो पहले था ना, वो उसका बिलीव नहीं, वो लिमिटिंग बिलीव था, अब तो उसने नया नया ऑर्डर प्लेस किया है मुझे। योर सबकॉन्शियस माइंड इज एवरी टाइम टेकिंग द ऑर्डर्स व्हाट यू गिव थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। और अगर आप देखो, हम हम जब बोलते हैं ना क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, हम कहाँ जाते हैं तभी? when we do the meditation, when we do Ho'oponopono, we go deep inside our subconscious mind। आप करके देखो, यू गेटिंग वेरी एंशियस, सपोज आज आप बीमार हो, या यू आर गेटिंग वेरी एंशियस, ओके, आपको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा हो रहा है, राइट? कोई तो भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। आप आपकी बॉडी की लैंग्वेज नोट करना, कि आपकी बॉडी में क्या चीजें डिफरेंट हो रही है, आपका पल्सेशन बढ़ जाएगा, आपकी हार्ट बीट थोड़ी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी, आपको रेस्टलेसनेस फील होता है, राइट? इमीडिएटली दैट टाइम यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट टेल इट्स ओके यार, रिलैक्स, रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, यू कैन डू इट। व्हाई आर यू गेटिंग एंशियस? रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, एंड आप थोड़ी देर में देखना आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। एंड दैट इज व्हाट वी डू इन मेडिटेशन। We keep on giving you the instructions, and you close your eyes, and then you keep on going deeper and deeper, deeper and deeper, touching your subconscious mind। तो हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों भी प्ले करते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो कॉन्शियस माइंड ऑर्डर देता है ना, वो वही सुनता है। तो आज से हमको कॉन्शियस माइंड को क्या ऑर्डर देना है? जो हमको चाहिए, हमको जो लैक है वो नहीं बोलना है। वी हैव टू रिमूव आवर फोकस अवे फ्रॉम द लैक। बिल्कुल से हमारा यानी फोकस ही निकल जाना चाहिए वो लैक से।
हमारा फोकस, मुझे मेरा लोन चुकाना है तो मेरा फोकस पैसों के ऊपर है, राइट? तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव रिसीव्ड द मनी टू पे पे माई पेमेंट टू दिस दिस पर्सन। आपका ड्रीम या पैसा लिखो, जो भी पर्सन का नाम है, लोन मत लिखो, डेप्थ मत लिखो, बिकॉज दोज आर वेरी नेगेटिव वर्ड्स। सो यू नीड टू पुट दोज टाइप ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड। एंड आप देखोगे धीरे धीरे जब आपने ये चीजें करनी शुरू करी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो नई जरूरतें हैं, आपको जो चाहिए, वो आपको देना शुरू कर देगा। बट अगर आपने डाउट लाया, अगर आपने डाउट लाया होगा क्या नहीं, मैंने बोला ना कल भी कि डोंट आस्क हाउ, यूनिवर्स को आपको गाइडेंस नहीं देनी है, ऊपर वाले को हम ऐसा नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं मुझे है ना तू इतने पैसे का बंदोबस्त कर दे, फिर मैं इतना खुद से डाल दूंगी और फिर ये मेरी चीज आ जाएगी। नहीं, आपको यूनिवर्स को सिर्फ ये बोलना है, जो भी आप मानते हो, अल्लाह भगवान, उनका नाम ले लो। अगर आपको उनकी फीलिंग आती है ना नाम लेने से, जरूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्स ही बोलना है। आपको राम से फीलिंग आती है वो डालिए, आपको अल्लाह से फीलिंग आती है वो डालिए, आपको जीसस क्राइस्ट, गणपति बप्पा, जो भी, विष्णु, जो भी जिसको आप मानते हो, आप उनका नाम लेके बोलिए और उनको बोलिए मुझे पता है कि आप मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करोगे। आपने जैसे आपकी इच्छा लिख दी ना, आपके माइंड में वो थॉट आना चाहिए, ऐसे जैसे अभी मैंने फर्स्ट सेंटेंस कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द लैपटॉप। आपके माइंड में सब, यानी जो पीछे का माइंड है ना, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने इमीडिएटली आपको ये बोलना चाहिए, हाँ ये तो मेरी पूरी होगी होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख दिया कि मेरे पास आ गया है लैपटॉप। आपको प्रेजेंट टेंस में ये लिखना है कि ये चीज ऑलरेडी हो गई है। जैसे हम अभी कल डिस्कस कर रहे थे कि हम जब भी प्लान बनाते हैं ट्रैवल का, तो हम क्या क्या चीजें करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो मेमोरी में, माइंड में वो इमेजेस डाल दिए ना, कि हम कश्मीर जाने वाले हैं, हम स्नो में खेलेंगे, हम जिप लाइन करेंगे, हम ये वाले होटल में रुकेंगे, हम हॉर्स राइड पे ऊपर तक जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी इमेजेस बनाना शुरू कर दिया है, तो वो इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। एंड देन यू सी द फ्रुटेशन ऑफ दैट थिंग्स हैपनिंग, कि आपका वो ट्रैवल प्लान प्लान बन जाता है। द सेम थिंग इज लाइक एवरी डे हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, बट हमारी आईज खुली नहीं है, बिकॉज हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे नेगेटिव है अपने आप को। when you start loving when you start loving yourself, when you start saying to yourself, अरे आई कैन डू इट, पैसा तो मेरे पास भर भर के आ रहा है, पैसा तो मेरे पास भर भर के आ रहा है, तो आपने ये क्या किया, ट्यूनिंग कर दी रेडियो की फ्रीक्वेंसी की। आप उसको ट्यून कर रहे हो, क्योंकि आपको जो चाहिए, आज आपने जो डिजायर प्रकट की है ना आपके मन के अंदर, अगर मुझे एक बात समझो, अगर आज मुझे लैपटॉप लेने का मन हुआ है ना, तो यूनिवर्स ने वो डिजायर ऑलरेडी बाहर आपकी पूरी कर दी हुई है। तो ही आपके मन में वो थॉट आया कि मुझे लैपटॉप लेना है या मुझे घर के लिए फ्रिज लेना है, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी वो चीज आपकी पूरी कर दी है रियल बाहर की दुनिया में। हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमने फोकस नहीं है पे देखा है। बट जब आपने थॉट लाया है ना, अगर आप बहुत, अरे आज मेरा पानी पूरी खाने का बहुत बिल होता है हो रहा है, और आप देखोगे आपके सामने किधर चलते चलते पानी पूरी का ठेला दिख जाता है, और आप चलो आज खा ही लेते हैं, ये क्या होता है, आपने, आपके मन के अंदर वो थॉट आया, वो थॉट इमीडिएटली सबकॉन्शियस माइंड में गया, कॉन्शियस माइंड ने उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेजा, और सबकॉन्शियस माइंड ने आपको रियलिटी में वो चीज दे दी, दिखा दी आपको बाहर। तो दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड, सी दिस बुक इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड। ये कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है आपको, इट इज ओनली टेकिंग यू टू द ग्रेटिट्यूड, ताकि आपको जो चाहिए आप उसको पहले थैंक यू बोल के अचीव करो। आप पहले से थैंक यू बोल दो कि यार मेरे पास तो आ गई है ये चीज, मैं तो जा ही रही हूं दुबई,
मैं तो जा ही रही हूँ सिंगापुर। कोई भी मेडिकल इशू है, आप पहले से बोल दो कि वो क्लियर हो गया है। पहले से बोल दो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माई दिस थिंग इज गॉट क्लियर्ड। मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। My blood sugar, if you are having diabetes, or sorry, I should not say the word, if you are having the health breakdown in sugar levels, you should say that my sugar level is this, जो नॉर्मल होता है। एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड पीछे हट रहा है और आपका सब कॉन्शियस माइंड जग रहा है। हमारा लेवल उधर तक नहीं पहुंचता है। टुडे व्हाट आई से कि मैं जो मुंह से बोलती हूँ मेरा पूरा हो जाता है, बिकॉज अब मैंने मेरे माइंड को रिवायर कर दिया है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, और फिर मैं जब प्रेयर करती हूँ या जब मैं अकेले बैठ के बात करती हूँ, आई आई टेल गॉड, तू ही है जो मेरा पूरा करने वाला है। मैं तो और किसी से मांगूंगी भी नहीं। मुझे तो मेरे हस्बैंड से भी नहीं मांगना, मुझे मेरे बच्चों से भी नहीं मांगना, मुझे मेरे इन लॉ से भी नहीं मांगना है। इस तरीके से फिर आप जब जिद करोगे ना, क्योंकि आपने अभी इतने थैंक यू किए हैं, तो ऊपर वाला जरूर आपको चीजें देता है। अंडरस्टैंड 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ योर ड्रीम। डाउट नहीं लाना है। आप जब डाउट लाते हो ना, कैसे होगा, कैसे होगा, राइट, तभी नहीं होता है कुछ भी। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो आपको जो चीज आप मांगते हो कॉन्शियस माइंड में बोलते हो ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर सिर्फ सुनता है और वो आपको देता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या मांगना है। मुझे लैक मांगना है, क्या मेरे पास है बोलना है। अगर आप बोलोगे मेरे पास लैक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रियलिटी में वही प्रेजेंट करेगा। जब आप बोलोगे मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास इनफ है, आई कैन पे माई लोन, आई कैन गेट अ न्यू कार, आई कैन गेट माई लैपटॉप, आप देखोगे आपका वही चीज आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो आप जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज दिस प्रैक्टिस यूल हैव टू डू रिपीटेडली। आप जितना विजन बोर्ड देखोगे, जितना बार बार आपके रोज ड्रीम को, मॉर्निंग में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम में एक बार, फोन पे रख लो यार उसका पिक्चर विजन बोर्ड का। जितनी बार फोन खोलते हो उतनी बार आपको होम स्क्रीन पर रख लो, राइट। लाइक नाउ व्हेन वी आर डूइंग द मिरर बुक, मैंने इनको बोला था कि यू कीप योर पिक्चर ऑन द स्क्रीन। आपकी सेल्फी लेके आपका फोटो रखो। तो सेम वे वॉट एवर ड्रीम यू वॉन्ट, यू कीप उसका पिक्चर बना लो, आपका विजन बोर्ड बना लो। इस पे फोन पे इमीडिएटली हो जाता है, फोन पे करके आप आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो फोन पे रखो और उसको बार बार देखो। और मुझे नहीं लगता है कि हर बंदा आपके घर में आपके ऊपर नजर रख रहा है, तू क्या कर रही है या तू क्या कर रहा है, राइट। आपके पास उतना तो टाइम होता है कि हम 5-10 मिनट अकेले चाय पी रहे हैं तो हमने फोन खोला, हम चैट देखते हैं, हम फालतू की गॉसिप करते हैं या रील देखते हैं। उससे अच्छा अपने विजन बोर्ड को देखो बार बार। आप जितना देखोगे ना, तो वो इमेज हम देखने के लिए का रीजन, अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन व्हाई वी लुक एट दैट पिक्चर अगेन एंड अगेन, बिकॉज आप जितना देखते हो वो इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर छपना चालू हो जाता है। फिर वो बुक की तरह प्रिंट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो जो उसको प्रिंटेड ऑर्डर मिलता है ना, वो आपको वही मिलेगा। आप होटल में, जैसे हम कल बात कर रहे थे, आप होटल में गए और आपने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, राइट, तो आपको वेटर वही लाके देगा ना। और जब वो गलत ऑर्डर लेके आता है तो हम कितना चिड़चिड़ करते हैं उसके साथ में, अरे मैंने ये नहीं मांगा था, तो ये क्यों लेके आया, मैंने ये वाली चीज नहीं मांगी थी, राइट। तो यहाँ पे आपके ड्रीम की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, मुझे खुशी चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ चाहिए। आई रियली वांट रोबस्ट हेल्थ, कि मैं बाहर जाऊं तो लोग मुझे बोले शी इज सो फुल ऑफ एनर्जी। तो उस तरीके से आप लिखो और आप बोलो, आई एम रोबस्ट, आई एम फुल ऑफ रोबस्ट एनर्जी।
मैं रोज सुबह में बोलती हूँ अपने आप को, आई एम एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, आई एम एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, एंड यू सी द डिफरेंस. At this age of 58, I get up early in the morning and I sit late till night doing all my work. तो ये कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड. सो एवरीथिंग इज इन योर माइंड. आपको कुछ नहीं करना है. तो इसके लिए मैंने बोला कि आप डायरेक्टर हो आपकी लाइफ के, आप प्रोड्यूसर हो, आप एक्टर भी हो. एक्ट करो ना. अच्छी चीज एक्ट करो. अच्छी एक्टिंग लाओ, गुड वाली एक्टिंग लाओ. सच में यार मेरा लैपटॉप कितना अच्छा है, वाह. मैं क्या कर रही हूँ? एक्टिंग कर रही हूँ ना, कि मेरा लैपटॉप कितना अच्छा है, मेरे पास आ गया है. मैंने उसका कवर कितना अच्छा है, मैंने उसके ऊपर न्यू कवर लगाया है. यू आर एक्टिंग एवरी डे. हम जो रोज जिंदगी जी रहे हैं ना, वी आर डूइंग दैट ओनली. तो ये जो रैल्फ वेल्डो थे ना, उन्होंने भी यही बोला था कि मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग. मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग. यानी पूरा दिन हम जो सोचते हैं ना, हम वही है रियलिटी में. तो अगर आप बुरा सोचते हो ना, तो आपको बाहर बुरा ही दिखेगा. आप बुरे लोग ही अट्रैक्ट करोगे. आप अच्छा सोचोगे कि आई एम अट्रैक्टिंग गुड पीपल जो मुझे मेरी कंपनी में हेल्प कर रहे हैं. आई एम अट्रैक्टिंग गुड मेड्स, गुड हाउस हेल्प, हु आर कमिंग एंड हेल्पिंग मी. तो आप देखोगे, आप वो ही चीजें अट्रैक्ट करोगे. बट आप, हम क्या बोलते हैं? अरे मेरी मेड ही अच्छी नहीं है. अरे वो काम ही ढंग से करती नहीं है. अरे इतनी छुट्टियां लेती है. बट इफ वॉट यू वॉन्ट, यू आप उसके ऊपर फोकस करो ना. आप आपकी जो अभी करंट मेड है उसके लिए भी बोल सकते हो, माई मेड इज रियली वेरी गुड. शी इज वर्किंग सो वेल, शी क्लीन्स माई हाउस सो नाइस, कि मुझे कोई चीज की चिंता ही नहीं रहती है. करके देखो. दूसरे दिन से देखो आपकी मेड कैसा अच्छा काम करती है. एक्सपेरिमेंट. मैं क्या बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ उसको एक्सपेरिमेंट करो. खुद से एक्सपेरिमेंट करो. जब तक आप एक्सपेरिमेंट और उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा ना, आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बढ़ेगा. तो जब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा ना, आप बोलोगे हाँ यार सच में ऐसा बोलने से सच होता है. एंड देन ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर ऐसे चेंज होगा कि आप खुद ही पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे. और जब भी आपके मुंह से नेगेटिव निकलेगा ना, तो आप उसको अवॉइड करोगे. दैट इज वाई सपना मैम, आई टेल यू, डोंट स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम्स ऑनलाइन. बिकॉज वेन यू स्पीक, यू आर गिविंग मास. वी आर एटलीस्ट 8 to 10 people now. तो वी आर गिविंग एनर्जी टू इट. हमारे पावर में, हमारे वर्ड्स में पावर होता है. सो द मोर यू आर स्पीकिंग नेगेटिव, इट इज इंक्रीजिंग. सो डोंट स्पीक नेगेटिव. ट्राई टू पुट द वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे, और ट्राई टू पुट इट ओनली इन अ सिंगल सेंटेंस कि ये मुझे ब्रेक डाउन है, खत्म. वहीं पे उसको बढ़ा चढ़ा के, इसको मसाला लगा के मत बोलो. बिकॉज यू आर गिविंग एनर्जी टू द नेगेटिव. क्योंकि आप बोल रहे हो, ध्यान करो, आप बोल रहे हो, आप मुझे बोलने की कोशिश कर रहे हो. बट व्हाट हैपेंस इज कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है ना वो नेगेटिव, और हम सब बाकी के लोग भी सुन रहे हैं. सो स्टॉप, स्टॉप योर सेल्फ. वेन एवर आपको वो थॉट प्रोसेस आता है ना कि अब मेरे मुंह से नेगेटिव निकलने वाला है, इमीडिएटली अपने आप को ब्लॉक करो वहां पे. आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक नेगेटिव. ओ आई हैव टू से आई एम ग्रेटफुल. कुछ नहीं सोचता है ना उस टाइम पे, तो एक ग्रेटिट्यूड का सेंटेंस बोल लेना मुंह में, कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे माइंड ने मुझे अलर्ट करा दिया. बस उतना बोल के फिनिश कर दो, वहीं पे स्टॉप कर दो. इतना भी आप बोल लोगे ना, सॉरी, आप ऐसे ट्रेन करना शुरू कर दो कि आपके माइंड को. सो एवरीथिंग बेसिकली इज इन माइंड. व्हाई डू पीपल गो फॉर स्पिरिचुअल जर्नीज? व्हाई डू पीपल गो फॉर हाई लेवल मेडिटेशंस? बिकॉज जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, अल्फा बीटा एंड देन डेल्टा, तो उसके बाद हमारा ह- हम रियल में पहुंचते हैं. तो बट बेसिक, वी आर कॉमन पीपल. तो हम हमको सिर्फ अल्फा स्टेट तक भी हम पहुंच गए ना, तो हम बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं.
हम जब अल्फा अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं ना, अल्फा स्टेट इज योर कॉन्शियस माइंड। सो व्हेन यू आर रियली इनटू योर कॉन्शियस माइंड, जब आपका कॉन्शियस माइंड समझने लग जाता है, अच्छा इसको ये चाहिए, मुझे अब इसको ये देना है, बिकॉज आपने उसको पॉजिटिव बोला, तो उसके लिए आपको अफर्मेशंस बोलते हैं कि बार बार बोलो। ओके, सो व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग इज ऑल्सो कमिंग टू मी। ओके, और वेयर आई एम मूविंग टूवर्ड्स इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स मी। तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो बाय रिपीटिंग 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 एंड अफर्मिंग। सो सेम वे यू हैव टू डू योर विथ योर ड्रीम। आपको पहले लिखना है, बोलना है, राइट? फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट, देन स्पीक, देन धारा जी क्यों बार बार जा रही है? यू हैव टू स्पीक एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड, फिर सुनना है, लिसन। ओके, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ विजन बोर्ड, देखना है उसको बार बार, सी, एंड देन यू आर गोइंग टू visualize it. So you're using your five senses. You're using your five senses. Understand the five-step process. You're using the five senses, okay, to feel your dream. और जब आपको वो फीलिंग आ जाती है ना, जब आपको वो फीलिंग आ जाती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो तैयार हो जाता है आपका सपना, और फिर वो सपना आपको बाहर दिखता है। देन यू टेक द इंस्पायर्ड एक्शन। नहीं तो तब तक आप अरे नहीं यार आज नहीं करती हूँ, छोड़ना, कौन सा वॉक करने से मेरा 2 ही किलो वजन उतरेगा। फिर आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये बार बार आपको challenges देगा। दैट इज व्हाट आई सेड कि currently we are here, and if you want to reach here there will be some challenges there you will which you will have to face। अगर आपका वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हाँ मुझे ये जगह पे ट्रैवल करना है एंड मैं ऑलरेडी वहां पे हूँ, आपने अगर अपना विजुअलाइजेशन इतना बढ़ा लिया कि मुझे, मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो मुझे सिर्फ, अब मैं जब बंद करती हूँ ना तो मैं मेरा केबीसी का ड्रीम देखती हूँ, तो मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे है ना पूरा उसका सेटअप दिखता है। मुझे ऐसे लगता है मैं पर्पल ड्रेस में बैठी हुई हूँ, उनके सामने, और फिर बच्चन जी मुझे पूछ रहे, अरे तुम्हारे तो 3 3 नाम है तो तुमको कौन से नाम से पुकारूं। तो मुझे ये सब चीजें दिखती है, जैसे क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट में लिखा था, तो अब मुझे वो स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे बाय हार्ट हो गया वो। तो मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ और मैं अपने ड्रीम के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बार बार वो खुद ही इमेजिनेशन में आ जाता है, अरे वाह कितना अच्छा यार सेट है, यार कितना मजेदार है, कितना लोग बैठे हैं, अरे वो बंदा वो जो कान में पहन के आता है ना वो टेक्नीशियन, वो बार बार आके मुझे बोल रहा है कि मैम ऐसे बैठो, मैम आपको अभी ये बोलना है, ये करना है। तो ये मुझे पूरे दिखता जाता है। तो आप जब आप आपका ड्रीम बनाओगे ना, तो आपको ड्रीम अभी फिर ऐसे होना शुरू हो जाना चाहिए, तो वो फिर धीरे 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 करके एट द राइट टाइम इट कम्स इनटू रियलिटी। Going into KBC is a very big dream. So I'm aware कि it will take time. And I am telling universe you take your time, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मैं ड्रीम भी बोलती हूँ, बट जब मैं टीवी में जब देख रही थी और मैं देखती थी यार इतना, किसी को कैंसर है, किसी को ये है, किसी को वो है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कि कोई अपने बच्चे के लिए आया, तो आई टू टेल गॉड पहले इनको बुलाओ, इनको ज्यादा जरूरत है मेरे से। सो आई डू दैट ऑल्सो। आई डोंट रन बिहाइंड माई ड्रीम लाइक दैट कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए मुझे। आई से टू गॉड कि यस दैट इज माई बिगेस्ट ड्रीम, एंड आई नो कि वो मेरा सपना पूरा होगा। उतना बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। सो इफ यू वांट टू ट्रैवल, इफ यू वांट अ कार, इफ यू वांट टू हाउस, स्टार्ट विजुअलाइजिंग मेरा घर ऐसा है, मेरा पहले से। जैसे हम शादी की तैयारियां कैसे करते हैं, बच्चे आने की तैयारियां कैसे करते हैं घर में, अगर बच्चा आने वाला रहता है तो कितने सारे। तो ऐसे सोचो आपका ड्रीम पूरा हो गया, आपने पूरी यानी वो चीज आ ही गई है, फिर आप कैसे तैयारियां करते हो उसके लिए, कैसे खुश होके बोलते हो। तो आपका ड्रीम लिखने के बाद, ये जो आपको कल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको आपको ये फील करना है कि अगर आपको फीलिंग नहीं आती है तो आपको ये फील करना है कि आपका इमोशंस क्या थे उस टाइम पे जब आपके, अरे वाह लैपटॉप आया मेरे घर में, वाह, मैंने दौड़ के बताया, किसको बताया, मेरी सिस्टर को कॉल करके बताया कि अरे मैंने नया लैपटॉप लिया, तुमको मालूम है।
एंड फिर अब उसको उसको लैपटॉप को डिस्क्राइब कर रहे हो, मैंने लेनोवा का लिया, मैंने इतना वाला लिया, मुझे इतने बजट में पड़ा, अरे मैंने ईएमआई पे लिया। ऐसे आप सब उस बोलो अपने आप के ड्रीम में, राइट। तो उसके लिए उन्होंने ये आपको क्वेश्चंस दिए ताकि आप स्क्रिप्ट लिखते समय आपको ध्यान में रहे कि आपको क्या करना है, कि व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव योर डिजायर, और हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टेल देम। फिर मैंने बोला अरे मेरे बेटे को, जा जा ना जा, तू अब जरा पेड़े लेके आना, अपन सबको पेड़े बांटेंगे, राइट। हम क्या करते हैं, हम हमारे घर में भी जब कोई फंक्शन होता है तो हम इमिजिएटली एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वैसे आपको ड्रीम के लिए आपको पहले से एक्साइटेड हो जाना है, राइट। मैं कपड़े क्या पहनने वाली हूँ, मेरे कौन से कलर के कपड़े रहेंगे, सब, एवरीथिंग। इफ यू आर ट्रैवलिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर, कैसे जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, एवरीथिंग यू डिस्क्राइब इन योर ड्रीम। और कितना मजा आ गया, ऐसे फील करना है कि मेरी ड्रीम पूरी हो गई। एंड फिर बाद में उसको सरेंडर करके यूनिवर्स को दे देना है। और आप जितना यूनिवर्स को दोगे, आप बोलोगे मैंने दिया है, मुझे पता है, तू ही देगा, तू ही देगा, तू ही देगा। आप देखोगे वो ही देगा आपको। जब आप अल्लाह को, जीसस को, जिसको भी आप मानते हो, आप उसको, वो बोलते हैं ना जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, आप ऐसे बोलोगे दे दो ना यार भगवान, दे दो ना, दे दो ना, वो नहीं देगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि बच्चा आके बोलता है कि मम्मी थोड़ी देर और टीवी देखने दो, तो आप बोलते हो नहीं, प्लीज मम्मी थोड़ी देर, प्लीज प्लीज प्लीज। जब वो बोलता है तो आप पिघल जाते हो, फिर आप बोलते हो अच्छा चलो और 15 मिनट देख ले, राइट। तो दैट इज हाउ ऊपर वाला भी हमारे से खुश होता है, जब आप उसको बाद में जिद करके बोलते हो कि नहीं मुझे तो चाहिए और मुझे पता है तू मुझे ये देगा। तो स्टार्ट विथ स्मॉल ड्रीम्स फर्स्ट। जब आपकी छोटी ड्रीम पूरी होगी ना, जैसे मैंने 50,000 का पैसा मांगा, या फिर मैंने कोई क्या बोलते हैं ज्वेलरी मांग ली या कुछ, तो आपको जब उसका वो पूरा होगा ना, तो आपको क्या पता है क्या होगा, कि आपको बिलीव सिस्टम बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। आप बिलीव, अरे हाँ यार ऐसे करने से सच में पूरा होता है। और फिर आप उसको बड़ी 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 चीजें मांगना शुरू करोगे ना, तो आपकी हर एक ड्रीम पूरी होती है, हर एक ड्रीम। भर भर के कपड़े, भर भर के ज्वेलरी, जो आपको चाहिए ना वो आपके सामने प्रेजेंट होता है। मेरे घर में इतने गिफ्ट्स आते हैं ना, माय फ्रेंड्स नो अबाउट इट, मेरे घर में इतने गिफ्ट्स आते हैं, इतने गिफ्ट्स आते हैं कि मुझे ऐसे होता है कि मैं क्या करूं। आई लिटरली गिव इट अवे, आई लिटरली गिव इट अवे टू पीपल, कि मैं, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। एंड आई बी थैंकफुल कि गॉड, through someone or the other, I am getting so many gifts. एंड आई कीप ऑन थैंकिंग टू गॉड, यार तूने कितना अच्छा, हर हर 2 दिन में मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाता है, हर 2 दिन में। और कभी कभी तो ऐसी चीज आ जाती है जो सच में मन में होती है कि यार ये लेनी है अपने को, और उसके पहले कोई लाके दे देता है। तो यू विल सी दिस डिफरेंसेस, बट योर प्रैक्टिसेस ग्रैटिट्यूड शुड नेवर हैव अ लैक। आप जितना लिखोगे, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डू फोकस ग्रैटिट्यूड टुमारो फॉर मनी। Maybe 2 hours if we are sitting, then 1 hour money, 1 hour health. I am very particular for health also. So 1 hour money, 1 hour health. If all are joining, I am putting a poll tomorrow, 2:30 to 4:30. We will be sitting. You will need a journal. You will need your pen to write. We will be continuously writing on PPF, that is past, present, future. तो आप लिखोगे पहले, क्योंकि अभी आज आपको ड्रीम लिखना आ गया है, तो हम फ्यूचर के लिए लिख सकते हैं। तो पास्ट का लिखेंगे, अगर आपको पैसे चाहिए तो हम पहले पास्ट में जितने जितने हमारे पास पैसे थे हम उन सबके लिए लिखेंगे। फिर प्रेजेंट में हमने पैसों से क्या क्या खरीदा वो लिखेंगे। एंड देन विल गो टू द फ्यूचर, व्हाट वी वांट इन योर ड्रीम लिस्ट। ओके, एंड देन अगेन वी विल बी गोइंग टू health, same way, doing PPF for health. Okay, so that is focus gratitude. Yes, Dharaji, you have a question. Your voice is यस breaking. Dharaji, your voice is मतलब breaking. मेरे Yes, Dharaji, your voice is breaking. मैं मैम नेटवर्क चैलेंज है यहाँ पे, Huh? कोविड। Okay, okay. इट्स ओके। Yeah, now it's better.
मैम मेरा क्वेश्चन है ना ड्रीम लिस्ट के रिलेटेड था। तो जैसे है ना मतलब हमारे अंदर एक और बिलीफ डाल दी गई है, जैसे हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मतलब जिद करके लेके आते हैं। तो काफी बार जैसे हमारे जो बड़े थे ना, उन्होंने ऐसा डाल के रखा है कि आप जिद से चीज मांगते हो ना तो वो आपके पास टिकेगी नहीं, और वरना क्या होगा, टिक भी जाएगी ना तो वो आपको बहुत परेशानी देगी। तो इस बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें? वन थिंग इज देयर, जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हम जिद करके मांगते हैं तो ऊपर वाला पूरा करता है, राइट। जब हम माँ बनते हैं ना, तो हम बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करते हैं, राइट। जब हमको जरूरत लगती है ना कि हाँ ठीक है यार आज दे देना चाहिए, चल छोड़, तो हम दे देते हैं। और कभी कभी हम उसको मना भी करते हैं। तो सेम वे यूनिवर्स विल गिव यू ओनली दैट व्हाट यू रिक्वायर। पहले तो बात ये क्लियर, राइट। सेकेंड थिंग इज, आप ये जो बोल रहे हो ना लिमिटिंग बिलीफ, जिद करके, आपको अगर राधा कृष्ण की स्टोरी पढ़ी हो आपने, या और कोई जो आप रिलीजियस स्टोरीज आपने पढ़ी होगी ना, तो आप ध्यान करोगे कि वो जिद करके अपनी चीज को पूरा करते थे, राइट। वो जिद करते थे कि नहीं मैं तो करके ही रहूंगी। मीरा कितनी दीवानी हो गई थी, राइट। उसको कितना बोला था, राइट। शाहजहां मुमताज की स्टोरी देख लो, जिद थी, राइट। राइट। हाँ। रेडी टू सैक्रिफाइस, रेडी टू डू एवरीथिंग। तो जिद जमानों से चली आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि उस लिमिटिंग बिलीफ को कैसे निकाले। मैं जो भी मांगती हूं ना, वो मेरी जिद ऊपर वाला पूरी करता है। मैं जो भी मांगती हूं ना, ऊपर वाला मेरी वो जिद पूरी करता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस अपने माइंड को ये बोलना शुरू करना है। आप जितना मैं बोलोगे ना कि मैं जो भी मांगती हूँ ना ऊपर वाला मेरी हर जिद पूरी करता है, तो आप देखोगे वो आपकी हर जिद पूरी करेगा। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला गया है ना कि वो जिद से जो चीज आती है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज अ लिमिटिंग बिलीफ, राइट। तो वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ चेंज हो जाएगी जब आपकी जिद पूरी होनी शुरू हो जाएगी, राइट। ओके। ओके। और मैम एक चीज और, मतलब जैसे हमारे ग्रंथ साहिब में भी बोलते हैं कि रजा में राजी रखना, ऐसा बोलते हैं जैसे कि आपकी जो रजा हो उसमें ही हमको राजी रखना। तो मुझे है ना मांगने में थोड़ा इसलिए चैलेंज आता है कि भाई वो अच्छे से मतलब निभ पाएगी ना, टिक पाएगी ना, मतलब टिक इन द सेंस कि वो कि आप बहुत डाउट, ज्यादा। धारा जी आप डाउट ला रहे हो ना। देखो रजा में वो जो बोलते हैं ना, तो वो तो वही तो हम हमारे ड्रीम्स में भी तो वही बोल रहे हैं ना। और हम वही बोल रहे हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, अभी गॉड आपको वही देगा। दैट इज व्हाई ऑलवेज से मे गॉड गिव यू ऑल दैट यू रिक्वायर। जो ओके। आपको जरूरत जो होगी अच्छा ना सोचा ऊपर होगा वाला वही वही देगा। देगा। उसकी रजा के बिना, ओके। उसकी रजा के बिना दुख भी नहीं आता है। उसकी रजा राइट। के बिना दुख भी नहीं आता है। वो अगर चाहता है, अगर आपको दुख दे रहा है ना, उसमें भी आपके लेसन्स है सीखने के लिए करके वो आपको दुख दे रहा है। तो रजा जब वो करता है ना, तो दोनों में करता है, दुख में भी और सुख में भी। ये भी समझो। ओके। ओके। आप ओके। ऐसे बोलो कि मुझे वो थॉट लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालो। रजा यानी जो भी आए, आप जब आपकी डिजायर रख रहे हो, आप जानते हो मेरी डिजायर क्या है, मेरी रियल डिजायर क्या है, मुझे वहां तक लेके जाओ। अगर आपको हिचकिचाहट होती है ना कि मैं ये नहीं मांगना, तो आप ये बोलो कि आपको मेरी डिजायर पता है ना, तो आप मुझे वो दो, देखो आपको मिलता है क्या। क्योंकि हमको ओके। क्लैरिटी ऑफ द डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स सबको देने के लिए बैठा है, उसको कैसे याद रहेगा मारिया को क्या चाहिए, धारा को क्या चाहिए, राइट। उसको यस। पता है। बट जब तक तुम मांगोगे नहीं क्लैरिटी से, वो कैसे देगा आपको। फिर वो तो बोलेगा यस। धारा को तो मैं 1 करोड़ दे देता हूँ। बट धारा उसमें अगर खुश नहीं है, राइट, वो तो दे देगा आपको, बट अगर वो खुश नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो राइट। उसके लिए तो मैम उसकी, हाँ।
एक और क्वेश्चन था, जैसे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं, सब कुछ होता है, तो यूनिवर्स टेस्ट भी लेता है बीच में, तो काफी चीजें हमको ऑपोजिट वे में जा रही हो ऐसा दिखता है, तो उसमें हम अपनी ट्रस्ट और फेथ को कैसे टिकाए रखे कि नहीं, जो हमने मांगा है वो देगा तो सही। उसमें भी हम बहुत हिल जाते हैं, काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उसमें मैं गिव अप बहुत कर देती हूँ जल्दी से। बिकॉज आप डाउट लाते हो। आप देखो, कभी कभी अगर कोई चीज नहीं भी हासिल होती है, मैंने क्या बोला कि कोई ड्रीम्स को टाइम लगता है, कोई ड्रीम्स आपको हम्म। ऊपर वाला इमीडिएटली दे देता है, क्योंकि दैट इज द टाइम रिक्वायरमेंट दैट टाइम। तो जब वो आपको वो उस टाइम पे जो चीज की जरूरत होती है वो आपको दे देता है। और कभी कभी कोई चीज नहीं मिलती है ना, और हमको अंदर से फिर चिढ़ आनी शुरू हो जाती है, नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, तो आप डिसबिलीव में चले जाते हो। तो वो आपका टेस्ट लेगा नहीं क्या? वो राइट। आपका टेस्ट ले रहा है। वो आपका हम्म। टेस्ट जरूर लेगा ना कि आप कितना बिलीव कर रहे हो कि यार मैंने तो स्टार्टिंग में बोल दिया था बड़ी बड़ी बात करके कि हाँ मुझे तो बिलीव है कि मेरा तो होगा ही होगा। बट जब वो चैलेंजेस दे रहा है, अगर आप उसको फेस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको फेस भी तो करना है ना राइट। चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस आपको कुछ हम्म। सिखाने के लिए आ रहे हैं। डू यू ऑल नो दैट प्रॉब्लम्स आर योर फ्रेंड्स? यस मैम। तारा जी, आप ये यस आंसर करो। मैम। प्रॉब्लम्स आर योर फ्रेंड्स। बोलो, प्रॉब्लम्स यू आर माई यस। फ्रेंड, टेल मी व्हाट आई नीड टू लर्न। देखो आपका आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा उसमें से। प्रॉब्लम्स आर योर फ्रेंड्स बेसिकली। जब आप प्रॉब्लम्स को अपना फ्रेंड्स बना लेते हो ना, और आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझते हो ना, तो आप खुद ही देखोगे उसमें से सोल्यूशन निकल आता है। बट हम जब बोलते हैं ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, हाँ बोलो प्रॉब्लम आ जा, तू तो मेरा फ्रेंड है, तू तो मुझे कुछ बताने आया, बता मुझे क्या करना है, एंड ही विल गिव यू द सोल्यूशन। और हम क्या करते हैं जब प्रॉब्लम आता है ना, हम इसको कॉल करते हैं, उसको कॉल करते हैं, अरे मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा हो गया, हम इसको सलाह लेते हैं, हम उसका डिसीजन पूछते हैं। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। अरे आप अपने अंदर से पूछो, इस ये प्रॉब्लम हुआ है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर सेल्फ, जस्ट इसमें मुझे क्या करना चाहिए, और ले लो वो एक्शन। अगर सपोज एक्शन वो रॉन्ग हो गया धाराज, ओके, सपोज वो एक्शन रॉन्ग भी हो गया, आपने डिसीजन रॉन्ग लिया, राइट, उसमें से भी आप सीख के निकलोगे। बट अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया, मैं सिर्फ सोचने में रह गई, सोचने में रह गई, सोचने में रह गई, तो कहां से होगी चीजें आगे रन? यस। तो एक्शन तो लेना ही है, बिकॉज और सब अपने अंदर है। अपने आप को पूछो मुझे क्या चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स का। धारा जी, मैं जब आप होपोनोपोनो कर रही थी, आज मुझे आपके प्रॉब्लम्स का भी थोड़ा सा एक चीज मिला है, विच आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो। ओके। आपके अंदर सॉल्यूशन है, अपने आप को पूछो। आपको जो चाहिए, आपको जो चीज चाहिए, जैसे चाहिए ना, कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आती है ना, आप खाली अपने आप को बोलो कि आज ऐसा ऐसा है, मैं क्या करना है मुझे, यू टेल मी। यूनिवर्स, जो भी आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, खुदा को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, उनका नाम लो, आपके इष्ट देवता का नाम लो, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तू ही मुझे रास्ता बता। और आप देखोगे थोड़ी देर में, मैं तो कितनी बार अगर मुझे बहुत ज्यादा बड़ा सिचुएशन फेस करना पड़ता है ना, तो आई राइट इट डाउन। आई जस्ट राइट इट डाउन कि ये सिचुएशन है। फिर उस टाइम पे मेरे मन में जो जो आ रहा है ना, कि पॉजिटिव क्या आ रहा है, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, नेगेटिव क्या आ रहा है, वो भी आई जॉट इट डाउन। आई जॉट इट डाउन बिकॉज द मोमेंट यू जॉट इट डाउन, आप देखोगे क्लैरिटी। एंड आई टेल यू, ये मेथड मेरी बेटी ने मुझे पहले सिखाया था, सबसे पहले व्हेन आई लॉस्ट माई हस्बैंड। ये मेरी बेटी ने मुझे सिखाया था कि मम्मी आप पहले लिखो कि आपको क्या चाहिए, उसमें से क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, एंड देन यू विल सी, यू विल टेक द राइट डिसीजन व्हाट यू वांट टू टेक। और ये होता है, करके देखना कि व्हेनेवर यू गो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू वेरी बिग सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन,
उसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है, उसमें नेगेटिव क्या हो सकता है, अपने आप को पूछो और लिखो। जब आप लिखते हो ना तो माइंड में क्लैरिटी आती है, वेन यू जॉट इट डाउन। अदरवाइज कंफ्यूजन ही चलता रहता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, कैसे होगा कैसे होगा। और तो वेन एवर यू आर इवन गेटिंग एंशियस, आपको वरी आती है ना, जस्ट क्लोज योर आइज और उसको पूछो, व्हाट आर यू गोइंग टू टेल मी वरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी। वही आई है ना आपके अंदर, यू बिकमिंग एंशियस, उसको आंखें बंद करके पूछो तो क्या क्या बताने के लिए आई है मुझे, एंड यू विल गेट द आंसर। और फिर ऑटोमेटिकली आप उसमें से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा। इफ यू आर गेटिंग एंशियस, पूछो व्हाई आई एम गेटिंग एंशियस, व्हाई आई एम गेटिंग एंशियस, क्या रीजन है यार, मैं क्यों इतनी एंशियस हो रही हूँ। एवरीथिंग इज तो इन प्लेस, एंड यू सी द रीजन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लैरिटी आई आज ड्रीम्स लिखने की। यस मैम, हाउ टू थैंक यू वर्क ऑन सो योर मच। कॉन्शियस माइंड। Yes, thank you, Dara ji. Conscious mind and subconscious mind. Understand कि your subconscious mind आपका करता धरता है। आप जितना उसको अच्छी फीड करोगे, जितना अच्छा खाना दोगे, अच्छी अच्छी थॉट्स का खाना दोगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट बाहर दिखाएगा रियलिटी में, बिकॉज जो हमको चाहिए वो ऑलरेडी इज देयर। इट इज ओनली अबाउट द राइट टाइमिंग्स एंड हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग। बट अगर आप बताओगे कि नहीं, मेरे पास लैक है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ आर्ग्यू करता ही नहीं है, वो आपको सिर्फ वही आंसर देगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास लैक है, मेरे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है। एंड यू विल सी ऑल दैट इन हैपनिंग इन राइट इन योर फैमिली। You will have fights in the family, you will have, but if you say my children are very good, I declare in front of everyone my children are very good, तो होता है घर में नोकझोंक छोटी मोटी भी होती है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, वी ह्यूमन बीइंग्स, होने वाला है। डिफरेंट माइंड्स वर्किंग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेरा देखने का पर्सपेक्टिव अलग, बच्चों का पर्सपेक्टिव अलग, हस्बैंड का पर्सपेक्टिव अलग, इन लॉज का पर्सपेक्टिव अलग। एक्सेप्ट द पर्सन ना, जैसा है वैसा। छोड़ो ना, हर चीज में आर्ग्यू क्यों करना है। एक्सेप्ट सामने वाले को जैसा है वैसा, क्योंकि आपको भी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये भी तो सोचो, बाहर कितने लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी हो, भले आप गुस्से वाले हो, इरिटेबल हो, क्या पता उसके माइंड में आपका क्या इमेज है, बट ही हैज एक्सेप्टेड यू और शी हैज एक्सेप्टेड यू ना, तो आप वैसे एक्सेप्ट करो। राइट, वाइंड अप, चलो लेट्स वाइंड अप। So thank you all for joining. If still there are any questions, you can post me personal on my personal window also. If you want any clarity, if you are still not understood, I'm there to guide you and help you. So let's wind up. So thank you for joining. God bless you all with all that you require. And may God give you abundance and fulfill all your dreams. God bless you Thank all. you, ma'am. Yeah, थैंक thank थैंक यू you. मार, थैंक यू, Maria. थैंक यू, थैंक Thank यू। Good you. night. Thank you. Thank you, everyone. Maria, I won't be able to join tomorrow Huh? because full day I have my exam, online exam, no, till 4 o'clock, from 10 o'clock to 4 o'clock. Okay. So yeah, if you can send a recording or something, then I can watch Recording to will afterwards. be coming only na tomorrow. Whatever we will be So doing, I will that recording to watch next that. day I put. Yeah, Yeah. chalega, not a problem. Because both the days, Saturday, Sunday, both the days I have exams, so Okay. it will be difficult. Okay, Okay. not an issue. Yeah. Okay. Chalo, Chal, bye bye bye. bye. See you. Bye. Bye.